good morning everyone. My name is Sunil Dagar. I'm a faculty in VisionIAS. Today we'll try and check a few questions जो the courses that we had given or taught in the class, चाहे वो security की class हो, geography, environment, disaster. So along with the classes, I usually have a habit of asking the students to write some answers. And some students have sent those answers. एक बार check करते हैं. Let's try and see the quality, the improvements, the content, the structuring, all of those things, and that might help the other students as well. Okay, so let's start checking. The question is based on a video that I had uploaded on White Collar Terrorism. ठीक है, VisionIAS के आप YouTube चैनल पे जाएंगे, you might see the link as well. ठीक है, just search White Collar Terrorism. So the question is, White Collar Terrorism is not merely an offshoot of traditional terrorism. One second. हाँ, White Collar Terrorism. So ये हमारा theme of the question हो गया. White collar terrorism is the theme of the question. So it's not merely an offshoot of traditional terrorism, it's an evolution. अभी जो first statement है ये question नहीं है, ठीक है? UPSC में please keep an eye on where exactly is the question. Normally first statement can be given as sort of a framework of the broad answer, but उसको directly address नहीं करना होता है. Question क्या है? Question है analyze the reasons. The first part they are asking is the reasons which make its detection far more complex. तो क्या reasons हैं कि ये detect नहीं हो पाता है? Okay, but it's quite complex to detect this white collar terrorism. And second part of the question is consequences. Consequences which are very severe. So why detecting white collar terrorism is very complex, and how it makes consequences far more severe, especially in a context of in a country like India. तो ये आपको इंडिया के context में, that means Indian examples you have to provide. ठीक है, so ये हमारा question है. Of course दो पार्ट है, तो हमें दोनों पार्ट एड्रेस करना है. लेट्स से अगर ये 10 मार्कर है तो लेट्स से इंट्रोडक्शन में we talk about, normally इंट्रोडक्शन में we talk about the theme of the question. थीम क्या है? white collar terrorism. तो white collar terrorism को हम डिफाइन करना, we'll try to define this term white collar terrorism, and then body में first we'll talk about कि what are the reasons which make its detection very difficult and consequences far more severe. Okay, so let's try and see some of the answers which students have written. देखते हैं यहाँ पे. So this was the video that I was talking about. ठीक है, white collar terrorism, and the first answer that has been written is by Prince. तो एक बार Prince का quickly answer check करते हैं. So they're saying recently Delhi terror incident highlights. Recent Delhi terror incident highlights white collar terrorism, where educated professionals use their resources and networks for violence, marking a new trend beyond traditional extremist methods. Language अच्छी है, introduction concise भी है. अगर ये 10 मार्कर में इन्होंने लिखा है, that means 2 पेज में. So what we have to make sure is कि ये introduction हम maximum 3 लाइन से ज़्यादा extend ना करें. ठीक है, ये थोड़ा सा we'll have to be a little careful about that कि ये introduction should be under 3 lines. ठीक है, तो इसको ट्राई करो कि 3 लाइन के अंदर अंदर आप रैप अप करो, बिकॉज वी नीड मोर कंटेंट फॉर द बॉडी ऑफ द आंसर. ठीक है, अब देखो एवोल्यूशन पूछा नहीं था, दैट्स वाई इसको अलग से एड्रेस नहीं करना है, बट इन्होंने एक छोटा सा डायग्राम बना दिया. नाउ दिस इज द करेक्ट वे टू आंसर द क्वेश्चन. जो टर्म मेंशन्ड है बट वो पूछी नहीं गई है, तो उसको इतना ही स्पेस देना चाहिए. ठीक है, सो एवोल्यूशन में सेइंग ट्रेडिशनल एक्सट्रीमिज्म, फाइनेंशियल साइबर अडैप्शन, लीगल कवर, सस्टेन नेटवर्क, सिस्टमैटिक डैमेज. अब ये बुरा नहीं है, बट इट्स टू कॉम्प्लेक्स. यू हैव टू राइट इट वेरी वेरी सिंपल. इन अ सिंपल मैनर आपको ये थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि फर्स्ट रीडिंग में ही एग्जामिनर को समझ में आ जाए. ठीक है,
तो इसका जो एवोल्यूशन है, या अगर आपको ऐसे नहीं भी लिखना था तो आप बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ ट्रेडिशनल से ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म के एवोल्यूशन में आप एजुकेटेड वर्सेस अनएजुकेटेड प्रोफेशनल्स का जो डिफरेंस है वो आपको ब्रीफली यहां 2 लाइन में बताना था, ठीक है। Why the detection is more complex? Now this is good. जो पूछा एंड क्वेश्चन मार्क जो पूछा है एग्जैक्टली वही लैंग्वेज होनी चाहिए इन द हेडिंग। हेडिंग में नेवर ट्राई टू राइट सिनोनिम्स और चेंज ऑफ लैंग्वेज, वो सब नहीं करना है, ओके। सो लीगल फसाड ऑपरेशंस रन थ्रू एनजीओज, शेल कंपनीज, obscuring criminal intent, FCRA license cancellation of foreign diversions, okay. Financial sophistication, हवाला ट्रेड, मनी लॉन्ड्रिंग, क्रिप्टो करेंसीज, ठीक है। थर्ड, डिजिटल एंड इंटरनेशनल ट्रांसनेशनल एनोनिमिटी, इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म, अगेन ऑफशोर राउटिंग, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, बट ये पॉइंट्स गलत नहीं है। बट आप ये देखो, लीगल फसाद या फाइनेंशियल सोफिस्टिकेशन, ये तो व्हाइट कॉलर टेररिज्म से जो जस्ट पहले टेररिज्म है विच हैड स्टार्टेड यूजिंग टेक्नोलॉजी, वो वाले पॉइंट्स हैं। व्हाइट कॉलर टेररिज्म में ये ऐसा क्या कर रहे हैं ना, एजुकेटेड लोग कौन कौन सी एप्स यूज कर रहे हैं। वीडियो अगर आप ध्यान से देखेंगे, वी हैड टॉक अबाउट सर्टेन एप्स, ठीक है, इन द वीडियो। Why consequences are more severe? Sustained extremist ecosystem enables continuous financing instead of isolated. और इसमें फाइनेंसिंग में भी आपको एक चीज ध्यान रखना है, फाइनेंसिंग व्हाइट कॉलर टेररिज्म में, बिकॉज ये एजुकेटेड प्रोफेशनल्स हैं, दे कैन इजीली गेट लोन्स एटसेट्रा फ्रॉम द बैंक्स। एक ये वाला एस्पेक्ट डोंट ट्राई टू लीव, ओके। Sustained extremist ecosystems enable continuous financing instead of isolated attacks. Long-term funding of proxy terror, institutional and economic erosion, undermine governance credibility. Again, पॉइंट एक तो कम है, 2 पार्ट लिख रहे हो तो 5 पॉइंट्स आने चाहिए, 5 पॉइंट्स ईच इन बोथ पार्ट्स, ओके। नंबर 1। नंबर 2, ये आंसर बहुत जल्दी लिखा है स्टूडेंट ने। देखो एक चीज क्लियर है कि स्टूडेंट की लैंग्वेज बहुत अच्छी है, तो उसमें वो स्मार्टनेस है कि इवन विद below average content they will be able to get above average marks. ये स्किल है स्टूडेंट में, as we can see from the language. But again यहाँ पे कंटेंट लैकिंग है, that means वो वीडियो या वो आर्टिकल्स बेसिकली हमने डिटेल में नहीं पढ़े हैं। Thus white collar terrorism poses a long term internal security threat demanding stronger financial intelligence, cyber forensics, inter agency coordination. अगेन कंटेंट थोड़ा सा लैकिंग है। व्हाइट कॉलर टेररिज्म क्या है उस पर ध्यान देना है। व्हाइट कॉलर वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, मैंने बताया था कुछ ऐसी एप्स हैं जिसमें आपको लॉगिन ईमेल या फोन के थ्रू नहीं करना पड़ता है, ठीक है। वो अपना एक प्राइवेट नेटवर्क बना सकते हैं। डेड ड्रॉप का कॉन्सेप्ट बताया था, जहां ईमेल को भेजते नहीं है, सिर्फ ड्राफ्ट में सेव कर लेते हैं। जो उनका पार्टनर है, को क्रिमिनल है, वो लॉगिन करके सिर्फ ईमेल को ड्राफ्ट में पढ़ लेता है, ठीक है। तो भेजा नहीं है तो नेटवर्क पे नहीं गई ईमेल, सो दैट्स व्हाई इट विल नॉट बी ट्रैक्ड, अंडरस्टैंड। सो दैट्स व्हाई दिस आंसर रिक्वायर्स कंटेंट इंप्रूवमेंट। एक तो कंटेंट इंप्रूवमेंट, स्ट्रक्चर अच्छा है, बट यहाँ पे 5 पॉइंट्स हमें ट्राई करना है लिखने का, ओके। लेट्स सी सम अदर आंसर्स। अंजलि का आंसर देखते हैं एक बार। व्हाइट कॉलर टेररिज्म रेफर्स टू हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स who use their expertise, good position, हाँ, resources to execute high impact strategically planned attacks like the recent, हाँ बहुत अच्छा है, इसको अंडरलाइन भी कर दो recent एग्जाम्पल को। इट्स अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन बिकॉज ये पॉइंट्स मैं देख रहा था, ओके। रीजंस मेकिंग इट डिटेक्शन कॉम्प्लेक्स, गुड। ये भी देखो हेडिंग में ये वाला पैरेलल लाइंस वाला ट्रेंड भी काफी फैशन में है, टॉपर्स काफी यूज कर रहे हैं, सो यू कैन यूज इट एज वेल, ठीक है। अब मैं क्या देख रहा हूं इसमें, नंबर ऑफ पॉइंट्स देख रहा हूं, 4 पॉइंट है, फेयर इनफ। कॉन्सिक्वेंसेज मोर सिवियर में 3 पॉइंट है, एंड बिकॉज ये बहुत कंटेंट लिख रही हैं, सो इन्होंने एक डायग्राम फॉर्म में सेकंड पार्ट किया, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो इसमें है प्रोफेशनल लेजिटिमेसी इनेबल्स ऑपरेटिव टू वर्क अबव ग्राउंड एंड इन प्लेन साइट। देखो ये टर्म्स आने चाहिए। अब ये क्लियरली दिखा रहा है कि इन स्टूडेंट ने वो वीडियो देखी, ठीक है, बिकॉज वीडियोज में वी टॉक अबाउट दिस पॉइंट। वीडियो का लिंक I'll add in the description, don't worry. Financially secured through legitimate income and professionally, ये देखो प्रोफेशनल नेटवर्क यूजिंग क्लीन ट्रेसेबल मनी, अंडरस्टैंड। बिकॉज गवर्नमेंट एजेंसीज देखती हैं कि इलीगल मनी कहाँ पे, वहां से टेररिस्ट अटैक हो सकता है। ये तो इलीगल मनी नहीं है। फर्स्टली दे आर अर्निंग, सेकेंडली दे हैव एक्सेस टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द बैंक्स एटसेट्रा। end-to-end encrypted technology, private servers, see now this shows the content, ठीक है। ये देखो डेड ड्रॉप, डिजिटल फाइनेंशियल मूवमेंट थ्रू एनजीओ, फाइनेंशियल मूवमेंट थ्रू एनजीओ, हवाला चैनल्स, हाँ ये पॉइंट अब इन्होंने देखो 4th पे डाला है, बिकॉज ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म से भी पहले हो रहा था।
ठीक है, इवन बिफोर व्हाइट कॉलर टेररिज्म दिस काइंड ऑफ थिंग वाज हैपनिंग. दैट इज व्हाई दिस स्टूडेंट इज स्मार्ट इनफ टू ऐड इट एज फोर्थ पॉइंट, नॉट फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट. फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट में स्पेसिफिक टू व्हाइट कॉलर टेररिज्म आप कंटेंट दीजिए. व्हाई कॉन्सिक्वेंसेज मोर सिवियर? Social consequences: erosion of institutional trust, damaging fabric of community trust, security. They have access to critical infrastructure. हाँ, economic destabilization severely hampers outsourcing of funds. ठीक है, अच्छा पॉइंट है, बट अगेन ऑलवेज चेक कि क्वेश्चन के सब्जेक्ट का है. अगर ये सिक्योरिटी का है तो सिक्योरिटी में ट्राई टू राइट मोर देन वन पॉइंट. ठीक है, तो आप यहाँ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को थ्रेट कह रहे हो. ठीक है, this insider threat, and again look at the usage of the term. ये insider threat, ये this shows कि इनकी grasp over the subject is quite good. ठीक है, तो सिक्योरिटी में जो भी you might ask सर पॉइंट कैसे लिखने हैं, just think of the syllabus. ठीक है, think of सिक्योरिटी में मनी लॉन्ड्रिंग आता है, सिक्योरिटी में साइबर सिक्योरिटी आता है, सिक्योरिटी में बॉर्डर एरियाज आता है, सिक्योरिटी में ऑर्गेनाइज क्राइम आता है, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग. ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं लिंक करके यू कैन मेक मोर पॉइंट्स समटाइम्स. ठीक है, रिगार्डलेस यहाँ 3 दिया है, आई वाज एक्सपेक्टिंग अगेन एटलीस्ट 4 to 5. ठीक है, उससे ही दैट एक्स्ट्रा हाफ मार्क यू विल बी एबल टू अचीव. लॉज सच एज इंडियन गवर्नमेंट हैज ब्रॉट लॉज, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट. अच्छा, जो भी इंपॉर्टेंट लिख रहे हो अंडरलाइन करो. ठीक है, और इसको ब्रैकेट में यूएपीए भी लिख सकते हो बिकॉज इट्स क्वाइट फेमस. प्रिवेंशन ऑफ पीएमएल एक्ट 2002. वी हैव इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. वी जैसी टर्म अवॉइड करिए यूज करना. ठीक है, यहाँ पे लिखो देयर आर इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज एज वेल लाइक रॉ, RNAW, NI वर्किंग टू कर्ब टेररिस्ट एक्टिविटीज इन इंडिया. अच्छा है, बट इनके आंसर में बिकॉज इंट्रोडक्शन एंड बॉडी वाज सो स्ट्रांग कि अब कंक्लूजन थोड़ा सा वीक लग रहा है. ठीक है, वीक लग रहा है. अब यहाँ पे व्हाट वी कुड हैव डन इज, बिकॉज दिस इज अ न्यू थ्रेट, तो यहाँ पे हम फ्यूचर एस्पेक्ट्स या ये फ्यूचर में व्हाइट कॉलर टेररिज्म कैसे फर्दर इवॉल्व कर सकता है, फर्दर कॉन्सिक्वेंसेज और हो सकते हैं. और अगर ये नहीं लिखना है तो फ्यूचर वाला एस्पेक्ट डाल के कि इट्स अ थ्रेट ऑफ द फ्यूचर, राइट डाउन द स्टेप्स दैट कैन बी टेकन. ठीक है, दैट कैन बी टेकन. क्लियर? तो इसमें ऑफ कोर्स यहाँ पे टेक्नोलॉजी का और ट्रेनिंग ऑफ आवर ऑफिसर्स की काफी ज्यादा नीड है. ये वाला एस्पेक्ट हम थोड़ा सा कवर कर सकते हैं. ठीक है, बट ओवरऑल वेरी वेरी गुड आंसर कंसिडरिंग ये जो बच्चे हैं गाइस, ये लास्ट 1 ईयर के विद इन इनका फाउंडेशन स्टार्ट हुआ है, तो दे आर स्टिल ऑन दैट ट्रैजेक्टरी ऑफ आंसर राइट. ओके, गुड. लेट्स लुक एट श्रुति's आंसर. अब श्रुति भी लिख रही है टेररिज्म. अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार देखो ऊपर से देखते हैं क्या लग रहा है कि अंडरलाइंड वर्ड नहीं है, पॉइंट्स ये नहीं करना है, पॉइंट नहीं है. मेक इट इजी फॉर द एग्जामिनर, एग्जामिनर आपको IAS बनाएगा, रिमेंबर दैट. ओके, सो इतने बड़े पैराग्राफ इज अ क्राइम इन यूपीएससी, ये तो 15 मार्क में भी नहीं लिखना है. तो टेररिज्म रेफर्स टू यूज, अब टेररिज्म की डेफिनेशन पूछी नहीं है, व्हाइट कॉलर टेररिज्म पूछा है. अब ट्रेडिशनली टेररिज्म लार्जली ड्रिव विद सपोर्ट फ्रॉम मार्जिनल, हाँ ये अच्छा पॉइंट है और इसको अंडरलाइन करिए. However, recent trends suggest increasing involvement of educated professionals, secure. इसमें white collar terrorism term missing है, इसमें please add करिए इंट्रोडक्शन में white collar terrorism और maximum 3 to 4 lines में you have to wrap it up. ठीक है, 3 to 4 lines में आपको ये इंट्रोडक्शन खत्म करना है. ठीक है, यही एक स्किल होती है कि 10 लाइन को कैसे कंडेंस करें 4 लाइन्स में. ठीक है, दैट यू विल लर्न विद आंसर राइटिंग. रीजंस एंड कॉन्सिक्वेंसेज नहीं, ये ऐसे नहीं लिखना है. रीजंस एंड कॉन्सिक्वेंसेज यू हैव टू बी वेरी क्लियर. क्या पूछा है? रीजंस विच मेक इट्स डिटेक्शन मोर कॉम्प्लेक्स. रीजंस नहीं पूछा है व्हाइट कॉलर टेररिज्म कि इसका डिटेक्शन कैसे कॉम्प्लेक्स कर देता है, क्या करते हैं ये टेररिस्ट. ओके, शिफ्ट इन सोशल बेस्ड मार्जिनलाइजेशन रेफर टू क्लीन स्किन्स. ओके, दे प्रोफेशनल लेजिटिमेसी प्रोवाइड्स प्रोफेशनल लेजिटिमेसी, वेरी गुड पॉइंट, इसको अंडरलाइन करिए. which enables them to blend into mainstream society and complicating profiling, surveillance, preventive detention. Okay, again बहुत ज़्यादा है. देखो एग्जामिनर ये देखता है 1 2 3 ऐसे, तो ये ज़्यादा करिए इसको. अगेन 2 lines, every point should not have more than 2 lines in a 10 mark. ठीक है, एंड ट्राई करो अगर एग्जाम्पल कहीं पे लिख सकते हो, कोई ऐप यूज कर रहे हैं तो उस ऐप का एग्जाम्पल, हमने बात किया था 3 ऐप एंड ऑल ऑफ दैट. ओके, ऑपरेशनल कैरेक्टर, द यूज ऑफ लीगल फाइनेंशियल रूल enables creation of financial blind spots. Okay, good use of English, use of sophisticated, डॉट क्यों डाला है भाई, 3 डालो. use of sophisticated technologies, अब इसको अंडरलाइन करो लाइक 3 ये लिख दिया ना 3 marks, so that means this student has seen the video. Excellent. which is an encrypted messaging application allowed. ये मत लिखो encrypted, सीधा लिखो 3 an encrypted app allowing anonymous
कम्युनिकेशन, सिंपल। ओके, एंड डेट ड्रॉप, इसको एक और अलग पॉइंट बना दीजिए, या तो फोर्थ बना दो या सब पॉइंट। देखो, नंबर ऑफ पॉइंट्स हैव अ साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑन द एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक कर रहा है, ठीक है। तो 3 देखेगा आपको, यहीं पे किसी ने सेम कंटेंट में 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, दैट स्टूडेंट विल गेट मोर मार्क्स। ओके, देयर एक्शंस, व्हाट इज दिस, देयर एक्शंस इरोड पब्लिक ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन, कॉन्सिक्वेंसेज आप लिखना चाह रहे हो, बट ऐसे नहीं, मुझे पॉइंट में चाहिए। अगेन, इन स्टूडेंट का कंटेंट बहुत सॉलिड है, इन्होंने मेहनत भी की है, वीडियो भी देखी है, शी हैज द आंसर, बट प्रोबेबली शी इज अ पार्ट ऑफ आवर फाउंडेशन बैच जो बहुत रीसेंट मंथ्स में स्टार्ट हुआ। जब बच्चे फर्स्ट आंसर लिखते हैं, डरते हैं, घबराते हैं, बट इसका सोल्यूशन भी आंसर लिखना है, आने दो डर। क्लियर, वो कहते हैं ना, डर के आगे चीता, वो आंसर राइटिंग प्रोसेस इज दैट यू हैव टू बी बैड एट आंसर राइटिंग फॉर 1 month 2 month एंड देन यू विल स्टार्ट इंप्रूविंग ऑन योर ओन। कोई आपको बताएगा, कोई वीडियो देख के आंसर राइटिंग ठीक नहीं होने वाली है। ऑफ कोर्स यू नीड गाइडेंस, बट यू हैव टू यूज पेन एंड पेपर, यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग, ठीक है। ओवरऑल गुड कंटेंट स्ट्रक्चरिंग में हम इसको बेटर कर सकते हैं। ओके, अनुष्क का देखते हैं। सो रिसेंटली कंट्री विटनेस्ड, कंट्री नहीं, इंडिया लिखो, विटनेस ब्लास्ट इन दिल्ली, रेड फोर्ट वगैरह थोड़ा मेंशन करो कॉन्टेक्स्ट के लिए। क्लेमिंग 19, अबे 19, देखो लाइव्स क्या होता है, यूजुअली नंबर इंक्रीज डिक्रीज होता है आपको स्पेसिफिक, तो क्लेम्ड ओवर 20 लाइव्स, क्लेम्ड अराउंड 20 लाइव्स, ये लैंग्वेज यूज कर सकते हैं ना। इंसिडेंट ऑफ व्हाइट कॉलर टेररिज्म, गुड, पीपल इन सर्विसेज क्लियर, यूजिंग वायलेंस, सर्विस क्लास, ओके, यूजिंग वायलेंस एज अ मींस टू क्रिएट, ठीक है, फेयर इनफ। रीजंस फॉर डिटेक्शन, अब देखो इनके आंसर में ही इज नॉट राइटिंग एनी, ही इज नॉट बीटिंग अराउंड द बुश, जो पूछा है वही लिख रहे हैं, कंसाइज इंग्लिश इनकी है, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। रीजंस फॉर डिटेक्शन बीइंग कॉम्प्लेक्स कैरिड आउट बाय पीपल इन रिस्पेक्टेबल पोजीशन, देखो ये मैं देख रहा हूं, हाउ स्मार्ट ही इज अंडरलाइनिंग एग्जैक्टली द वर्ड्स जो मुझे देखने हैं। क्लियर, सो ही इज मेकिंग माई लाइफ इजी, मैं इनको ज्यादा मार्क्स दूंगा, ये साइकोलॉजी है चेक करने वाली। डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, थ्रीमा मेकिंग इट डिफिकल्ट टू ट्रैक, अगेन थ्रीमा का थोड़ा सा एग्जांपल लिख दीजिए, ठीक है, कि उसमें लॉगिन क्रेडेंशियल्स की रिक्वायर्ड नहीं होती। यूज लेजिटिमेट मींस ऑफ फाइनेंस लाइक loan, salary, grants, okay. Nexus of experts in the field of technology, sciences, very good content. Content is super strong. Law agencies often track historical terrorists and have lack of tangible evidence. White collar terrorists, good. ठीक है, ये consequences में भी ये वाला point लिख सकते थे, इसी को थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख दो कि वो फाइनेंसेस ट्रैक करते हैं, इलीगल फाइनेंसेस, ठीक है, और ये जो हिस्टोरिकल टेररिस्ट की लिस्ट है, इसको कॉन्सिक्वेंसेस में हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई जो भी एक्सप्लोजन होगा, एक बिग स्केल एक्सप्लोजन फॉर एग्जांपल कर सकते हैं, easier than the traditional terrorist. Reasons of white collar terrorism being more, reasons क्यों लिखा है, consequences being more severe, है ना। Global reach without border due to legitimate means, good. Deceitful nature, good. Anonymity and invisibility, erode trust, widespread. अब ये देखो, ये चाहिए IAS बनने के लिए। If you look at the content, what he has is a very good command over English. इनके पास words हैं, anonymity, invisibility, widespread, eroding trust, global reach, right? Deceitful nature. This is something that you need in the exam. Okay? कि 3 points आते हैं, but उसको 6 कैसे करें? How to turn it into 6? Clear? कोई synonym use कर लिया, एक different example के साथ एक नया point fit, it'll look like a new point, right? With different example. In conclusion, white collar terrorism is a severe threat to national security. Mechanism like PNA must be strengthened. हाँ ठीक है, fair enough, no problem. Must be strengthened इन्होंने लिख दिया ना, so that's a very good language. इन्होंने एक solution दिया है problem का to tackle white collar terrorism, which is a threat of the present and future. Good answer, very good answer. Let's look at Irasha or Irasha Tripaঠি's answer. Okay, firstly good handwriting, secondly underline नहीं है, देखो handwriting बहुत अच्छी है but words underline नहीं है, that means I have to work hard. अगर मेरा work hard करवाओगे तो मैं marks नहीं दूंगा. This is again the psychology. So recent crackdown by India on terror financing through shell companies, NGOs, cryptocurrency, including investigation into cross-border funding by trade highlights terrorism nowadays increasingly operates without borders, bombs or guns. ये बहुत अच्छी language है but ये newspaper की language. ओके, अब धीरे धीरे नेक्स्ट 3, 4, 5 मंथ्स में यू विल अंडरस्टैंड कि इसमें से मेरे को बस वर्ड्स पिक करके अपने बॉडी में डालना है। इंट्रोडक्शन में मैं ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगी कंटेंट,
Okay, so that I get more marks. Body gets you the main marks. Clear? White collar terrorism refers to terrorist activities carried out through economic, financial, cyber, legal mechanisms rather than direct physical violence, money laundering, cyber terrorism, policy manipulation. ठीक है, fair enough, बट इसमें थोड़ा सा आप क्लियर करके बताइए कि व्हाइट कॉलर जॉब्स यानी सर्विस क्लास में जो है, राइट, रिस्पेक्टेबल जॉब्स में है, वो लोग ये कैरी कर रहे हैं. दैट इज द करेक्ट एंड सिंपल डेफिनेशन. रीजंस फॉर कॉम्प्लेक्स डिटेक्शन, नो विजिबल वायलेंस. प्लीज इसको अंडरलाइन करिए, हेडिंग को ऐसे डालिए 2 पैरेलल लाइंस में और इसको बॉक्सेस में रखिए पॉइंट्स को. ऑपरेट्स थ्रू बैंक ट्रांसफर, डिजिटल ट्रांजैक्शन, यूज ऑफ लीगल स्ट्रक्चर्स, इट यूज शेल कंपनीज, एनजीओ. ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स. हाँ, ये पहला पॉइंट होना चाहिए. क्लियर? बिकॉज देखो ना, ये नो विजिबल वायलेंस, लीगल स्ट्रक्चर, ये पॉइंट्स इवन नॉन व्हाइट कॉलर टेररिज्म एक्टिविटीज में भी यूज होते हैं. क्लियर? ये गलत नहीं है, ये यूज होते हैं, बट दे आर नॉट पॉइंट नंबर 1 and 2. ओके, सो it's the chronology of points that you need to keep in mind. Accountants, lawyers, tech experts, doctors भी लिखो ना यार. Overlapping with economic offenses. ठीक है, अब इसमें टैक्स एवेजन, वायलेशन ऑफ फेमा, मल्टी एजेंसीज. अगेन यहाँ पे वन थिंग हम सीइंग इज लैक ऑफ कंटेंट. लैक ऑफ कंटेंट स्पेसिफिक कम है बिकॉज वीडियो शायद नहीं देखी थी डिटेल. ओके, सो अगेन वॉच द वीडियो एंड ट्राई टू रीराइट द आंसर. सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर सस्टेन्ड थ्रेट एज फाइनेंशियल, repeated attacks and sleeper cells. Okay, economic destabilization, infiltration of policy, erosion of institutions, it reads silent. Again generic points है. White collar terrorism related content थोड़ा कम लग रहा है. ठीक है, देखो पढ़ने वाला पकड़ लेगा. ऑल्दो इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, so she is smart enough to write points जो respectable score दिलवा देगा. But they at best they might take you to the interview stage. Okay, but again like I said, these are new students, so we need to be slightly केयरफुल विद द फीडबैक. ठीक है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीडबैक नहीं देना होता है, थोड़ा पॉजिटिव रह के मोटिवेशन भी देना होता है, स्पेशली दोज हु आर राइटिंग इन द फर्स्ट ईयर ऑफ प्रिपरेशन. ठीक है, हाँ, आफ्टर 1.5 year वी कैन बी वेरी स्ट्रिक्ट. इंडिया स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटीज, गुड, ये भी अच्छा एक तरीका है, स्पेशली अगर 15 मार्क्स आए ना तो एक अलग से हेडिंग बनाने का अप्रोच अच्छा होता है. बट दिस वाज अ 10 marker, वी हैड अज्यूम्ड सो. लार्ज इनफॉर्मल कैश इकोनॉमी, रैपिड डिजिटलाइजेशन, बॉर्डर लिंकेजेस, जुडिशियल डिलेज. ठीक है, अगेन दीज आर टेररिस्ट रिलेटेड पॉइंट. ठीक है, टेररिस्ट यूजिंग टेक्नोलॉजी एटसेट्रा. व्हाइट कॉलर टेररिज्म के पॉइंट्स मिसिंग है. काउंटरिंग रिक्वायर्स मूविंग बियॉन्ड सिक्योरिटी टू प्रिवेंटिव फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, स्ट्रॉन्ग इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, रेगुलेशन. हाँ ठीक है, इनके पास कंटेंट इट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड. स्ट्रक्चरिंग और आंसर राइटिंग का इनको बेसिक नॉलेज है. ओके, देन देयर इज एस कौन है भाई, इनका आंसर देखते हैं क्विकली. द रीसेंट ब्लास्ट नियर रेड फोर्ट इन दिल्ली हैज फर्दर ब्रॉट लाइट टू अ न्यू इवॉल्व्ड फॉर्म ऑफ टेररिज्म, व्हाइट कॉलर टेररिज्म. ठीक है, नो बीटिंग अराउंड द बुश, नो प्रॉब्लम. इट इज कंसिडर्ड टू बी एन एवोल्यूशन ऑफ ओवर ट्रेडिशनल. देखो ये बहुत स्मार्ट है, ये क्या कर रहे हैं, ये अपने आंसर में वर्ड्स को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं सो दैट द एग्जामिनर फील्स कि दिस पर्सन इज फॉलोइंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, उसके अराउंड ही है, ये इधर उधर नहीं जा रहे हैं. सो ही इज वेरी स्मार्ट इन दैट सेंस. As there is involvement of educated professional class which brings expertise, finance to aid terrorism, hard to detect and disaster in effect. Very good paragraph. Although with time you will understand कि 10 marker में इतना बड़ा introduction आप नहीं लिख सकते. ठीक है, but try to wrap this, ये paragraph को अगर आप 3 lines में condense कर सकते हो, that is a skill you need to learn. But others, please look at this paragraph, look at his words, evolution, look at his words, he's defining professional class, expertise, finance, and then he's writing these hard to detect, disaster in effect, which is the demand of the question. 15 mark में ये perfect introduction and connecting paragraph है, लेकिन 10 marker में sometimes space can be an issue. ठीक है, उसको manage हमें करना है. How it makes detection complex, educated class with standings in society, good professionals who are renowned in their domain, who are socially known, economically well off. हाँ, तो इसमें देखो, इस एग्जांपल देता हूं, ऐसे मत लिखो, इसमें लिख दो renowned in their field, socially and economically, socially connected, economically well off. That's all. रेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, institutional coverage, people with such profession like doctors, lawyers, academic, renewable state, national institutions are there, is less likelihood of presence of terrorist mind. हाँ, बट अगेन थोड़ा सा इसको आपको क्लियर लैंग्वेज में कहना चाह रहा है. आई थिंक व्हाट यू ट्राइंग टू से इज, एक तो ये इंस्टीट्यूशनल कवरेज है, इसका मीनिंग क्या है, आर दे हाइडिंग बिहाइंड द इंस्टीट्यूशंस, राइट? तो थोड़ा सा इसको विल हैव टू चेंज द लैंग्वेज टू मेक इट इजी. Tech savvy, these professions are good technology, some great at coding, find loops in the digital infrastructure, well done. Cyber threat, clean financing,
since they have valid identities, renowned profession, they can access to finance in terms of loans, grants. अब देखो ये लिखने की जरूरत नहीं है, have valid identities etc. वो आपने ऊपर लिख दिया है, प्रोफेशनल्स हैं etc. So don't keep on repeating the same point. सीधा लिखो कि they can get easier loans, grants, because again think of the mind of the person checking the copy. उनको अब क्लियर है कि ये व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स क्या है, ठीक है. सो सीधा लिखो लोन्स ग्रांट्स इजीली मिल जाएंगे. Why they enter this domain? Again यहाँ पे आपने वो 3 ऐप, all of these dead drop, ये जो 2-3 टर्म्स इंपॉर्टेंट आई थी, वीडियो को प्लीज एक बार देख के you can further enrich the answer. It's a good answer. Why they enter this domain? Socially, ideological, relative deprivation, radicalization, ठीक है. Consequences, resource. अब ये पूछा है, देखो ये पूछा नहीं है, so that's why this kind of structure is good. But consequences has been asked. So consequences it needs more space. अब ये प्रॉब्लम क्यों आया? Because of space management. यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्पेस ज्यादा करते हैं, ओके. बट यू लर्न दैट, डोंट वरी अबाउट दैट. वे फॉरवर्ड बहुत बड़ा है. वे फॉरवर्ड 10 मार्कर में इतना बड़ा वे फॉरवर्ड, स्पेशली इन सिक्योरिटी, इज नॉट नीडेड. जो सराउंडेड बाय जैश मोहम्मद, आईएसएस. अगेन ये सब इतना लिखने की जरूरत नहीं है गाइस. बहुत 3 लाइन्स कंफ्यूजन इज मोर देन एनफ. कि हमें टेक्नोलॉजिकली एंड स्किल वाइज ट्रेनिंग करवाइए, इंप्रूव करवाइए. मे बी द लॉज नीड टू बी अमेंडेड टू केटर टू व्हाइट कॉलर टेररिस्ट एटसेट्रा, ओके. बट ये वाला पार्ट नीड्स मोर स्पेस. रिसोर्स लॉस, फार लीथल इम्पैक्ट ड्यू टू सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज, डीके इन पब्लिक ट्रस्ट, डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, इन्फ्लुएंशियल रिक्रूटमेंट. ठीक है, ठीक है. कंटेंट यू हैव, बट अगेन स्पेसिंग ऑफ सेकेंड पार्ट वॉज द चैलेंज. ठीक है, बट गुड आंसर, वेल डन. Let's look at Utkarsh. White collar terrorism exploits educated professionals' legitimacy, access to extremist violence. Again, exploits educated professionals. Exploits, thoda sa, it's not a correct term, just write down engages. White collar terrorism engages, right? Or employs, is तरीके से engages educated professional legitimacy, their professional legitimacy. Okay? Educated professionals legitimacy and access for extremist violence. ठीक है, ये ठीक है. बस ये exploit की जगह मे बी you could have, because आप exploit लिख रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि ये innocent है. Okay, it's covert nature. Well done. Makes detection harder, impacts more damaging. Detection challenges. हाँ, ये word change नहीं करना है. जो एग्जाम में है detection complex, why detection complex, वही रखना है. ठीक है, प्लीज हेडिंग में don't do anything. Clear? No changes. Professional legitimacy, respectable career, shield extremist intent from suspicion. Now look others, please look at his language. Very straightforward. No beating around the bush. और ये देखो एग्जाम्पल लिखने का तरीका, विजिबल है, एक्सीलेंट. इंजीनियर्स मैनेजिंग इनक्रिप्टेड टेरर कम्युनिकेशन. नाउ दिस इज अ परफेक्ट पॉइंट. यू आर राइटिंग द सब हेडिंग, यू आर राइटिंग द एक्सप्लेनेशन एंड यू आर राइटिंग द एग्जाम. ओके, इनका फॉन्ट बड़ा है, बस दैट इज अ चैलेंज. ही हैज टू डिक्रीज हिज वर्ड फॉन्ट. ठीक है, वर्ड का जो साइज है अल्फाबेट्स का वो छोटा करना पड़ेगा. लैक ऑफ कन्वेंशनल इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी डिफीट्स ट्रेडिशनल रेडिकलाइजेशन, प्रोफाइलिंग. ठीक है, टेक्नोलॉजिकल मास्टरी, एडवांस स्किल, सिक्योर कम्युनिकेशन, फंडिंग, कंसीलमेंट. एग्जाम्पल, indirect operational roles, actors facilitate rather than execute attacks, reducing visibility. Good. Academics, drafting, extremist propaganda. बहुत अच्छा है, बट ये इन्होंने 15 मार्कर में लिख दिया है. ठीक है, सो ठीक है, इनका 15 के हिसाब से लेट्स ट्राई एंड चेक. इंस्टीट्यूशनल एक्सेस, insider access heightens destructive potential, misuse of research facilities, severe consequences in India. Infrastructure vulnerability, insiders can destroy, I think आप लिखना चाह रहे थे. Essential services, example good. Cyber interference, trust deficit, radicalized officials aiding sleeper cells. Terror network endurance, professional skills, sustain operations, good. Legal dilemmas, security action risk, civil. हाँ ठीक है, बट थोड़ा सा वेग हो रहा है आंसर. ठीक है, और मैं समझ भी सकता हूँ, थोड़ा ट्रिकी है, बट अगेन द स्पेसिफिक्स, बहुत अच्छा स्टार्ट किया था आंसर, बट अगेन डेड ड्रॉप, 3 ऐप, ये जो हमने वीडियोस में थोड़ी बात की, इनको अगेन प्लीज ट्राई टू ऐड इन योर आंसर. ठीक है, कंक्लूजन देखते हैं. इंडिया मस्ट अडैप्ट इंटेलिजेंस सिस्टम्स टू काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर टेररिज्म एजुकेटेड एवोल्यूशन. ठीक है, अच्छा है, लैंग्वेज बहुत अच्छी है, क्रिस्प लैंग्वेज है इनकी. दैट इज वन स्ट्रेंथ ही हैज, राइट. कंटेंट इसमें थोड़ा सा और इनको इवॉल्व करना है बाय लुकिंग एट दी वीडियो, बट अगेन अ वेरी गुड अटेम्प्ट. ओके, अच्छा, उत्कर्ष के बहुत सारे आंसर और भी थे, इसको एक बार बाद में देखते हैं.
पहले लेट्स कंटिन्यू विद द व्हाइट कॉलर टेररिज्म. तो ये आदित्य है. ही इज राइटिंग एन एक्टिविटी परफॉर्म बाय प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स टेक savvy to increase. टेक savvy के आगे कुछ लिखना पड़ेगा, है ना. परफॉर्म बाय प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स. अब टेक savvy या तो इंडिविजुअल्स ऐसे करके आप लिख सकते हो. ऑल्दो टेक savvy प्रोफेशनल इज अ बेटर वर्ड, बट प्रोफेशनल आपने ऑलरेडी लिख दिया है. ठीक है. टू इंक्रीज द फियर्स एंड फुलफिल द एथनिक आइडियोलॉजी व्हाइट कॉलर टेररिज्म. ठीक है, थोड़ा सा और इसको बेटर कर सकते हैं लैंग्वेज को. रीजंस फॉर डिटेक्शन डिफिकल्ट. प्रोफेशनल प्रोफाइलिंग, दे हाईली रेप्यूटेड. ओके गुड. डॉक्टर, टेक्निकल एक्सपर्ट्स. टेक्नोलॉजी, प्राइवेट सर्वर, एंड टू एंड. हाँ, ये चाहिए पॉइंट. गुड. प्रीमा, डेड ड्रॉप. एक्सीलेंट. Financial access, easy to get finance, well done. Connection in network, easier academic network, societal relationship, good. Expertise in field, tech savvy है, expertise है. Consequences, क्यों severe है? Consequences, severe consequences करके आप यहाँ पे heading दीजिए, okay? Because you have to repeat the words when you're making these headings. अब सब heading पे आते हैं. Brain drain, experts youth of country near terrorism activity, infrastructure loss funded by terrorist organization like Jaish-e-Mohammed, ICBF. Like artificial non-state actors, radicalization, trust with government. ठीक है, अच्छे पॉइंट्स हैं. ठीक है, consequences बहुत severe हैं. इन्होंने थोड़ा और broader aspect में लिखा है, which is not a problem. but जब consequences की बात आती है तो सबसे major consequence होता है threat to life. कितना बड़ा explosion हो सकता है, how many casualties, right? Destruction to infrastructure. Infrastructure में भी दिल्ली मेट्रो है, आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो वाले पॉइंट्स कुड हैव बीन फर्दर एडेड. बट अगेन इट्स अ वेरी गुड आंसर. गवर्नमेंट ट्राइज टू काउंटर टेररिज्म इशू बाय लीगल वेज, यूएपी, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा, रिटेलिएशन, ऑपरेशन सिंदूर, महादेव. अगेन ये तो टेररिज्म का भी आंसर हो सकता था. कंक्लूजन, दिस कुड हैव बीन रिटन फॉर अ क्वेश्चन व्हिच वाज डिफरेंट. हाउ इज दिस कंक्लूजन स्पेसिफिक टू व्हाइट कॉलर टेररिज्म, ये आपको फिर से ऐड करना पड़ेगा. इसमें अगेन यू हैव टू टॉक अबाउट कि मे बी वी नीड टू स्टार्ट मेकिंग अ लिस्ट ऑफ पोटेंशियल सेक्टर्स जहां पे रेडिकलाइजेशन इन सर्विस क्लास कैन इजिली परपेट्रेट. ओके, तो इस तरीके का कुछ पॉइंट्स, कुछ लॉज को अमेंड करके कुछ इंटेलिजेंस में लोकल इंटेलिजेंस बेटर कर सकते हैं. तो कीप एन आई ऑन दीज हॉटस्पॉट्स जहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज है, या ऑल ऑफ दिस. बट अगेन द आंसर इज प्रीटी गुड. आई थिंक ये सृष्टिका, हु इज दिस? आविद का आंसर देखते हैं. सो आविद लिख रहे हैं, 1 सेकेंड. आविद लिख रहे हैं व्हाइट कॉलर टेररिज्म इज indirect but strategic use of financial cyber institutional tools. Okay. To advance terrorist objective while awaiting traditional security detection. ठीक है, बट इसमें अगेन थोड़ा सा हमें सोफिस्टिकेटेड प्रोफेशनल एजुकेशनल एक्सपर्टीज, हाँ ये वाले पॉइंट चाहिए. देखो मार्क्स तो यहीं पे मिलने वाले हैं, तो इसको फिर ज्यादा मत खींचो. ठीक है, डायरेक्टली पॉइंट पे आइए. 10 मार्कर में स्कोप ही नहीं है कुछ और लिखने का. ठीक है. रीजंस व्हिच मेक इट्स डिटेक्शन मोर कॉम्प्लेक्स. लीगल इंस्टीट्यूशनल सोसाइटी ऑपरेट्स थ्रू लॉफुल एंटिटीज सच एज एनजीओस, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट. ठीक है. एब्सेंस ऑफ इमीडिएट वायलेंस. हाँ, बट अगेन ये वाले पॉइंट्स आप पहले, a lot of students have these 2 points as number 1 and 2. that means उन्होंने कहीं से देखा है, right? They have probably googled या chat GPT या कोई mock answer. Guys, trust yourself more than that. ठीक है, कुछ भी इंटरनेट पे ऐसा अवेलेबल नहीं है जो आपके माइंड के अंदर नहीं है. You can always write better, especially when I send you the link to the video. उससे आप निकालिए आंसर. तो फर्स्ट एंड सेकंड ये वाले पॉइंट नहीं होंगे. ठीक है. Let's come to the second part.
आविद का सेकंड पार्ट देखते हैं. एक्टिविटीज रिमेन इनविजिबल, एडवांस टेक्नोलॉजी, एनक्रिप्टेड डार्क वेब, ओके, इंस्टीट्यूशनल इन्फिल्ट्रेशन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, इनसाइडर्स, करप्ट ऑफिशियल्स. ठीक है, अगेन व्हाइट कॉलर टेररिज्म स्पेसिफिक और पॉइंट्स हमें चाहिए. ठीक है, जैसे आप लिख दो ना एग्जांपल, एक नेटवर्क ऑफ डॉक्टर्स था यहाँ पे अल्फाला यूनिवर्सिटी में. कॉन्सिक्वेंसेस, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, इकोनॉमिक डिस्टेबलाइजेशन, सोशल मिसट्रस्ट एंड रेडिकलाइजेशन. ठीक है, अच्छे पॉइंट है, बट मेक इट 5 पॉइंट्स. व्हाइट कॉलर टेररिज्म पोज अ डीपर थ्रेट डिमांडिंग रोबस्ट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, साइबर विजिलेंस, विजिलेंस की स्पेलिंग देखिए, एंड इंस्टीट्यूशनल रेजिलियंस. ठीक है, वर्ड अच्छे हैं, पकड़ अच्छी है इनकी, बट अगेन वॉच द वीडियो अगेन, तो उससे आपको थोड़ा और क्लैरिटी आएगा ऑन द एग्जैक्ट डिमांड ऑफ द आंसर. बट अगेन इट्स अ प्रीटी डिसेंट आंसर. और ट्राई करो आंसर पीडीएफ फॉर्म में भेजे, है ना, इमेज में नहीं. कोमल का देखते हैं. Let's look at Komal's answer. White collar terrorism refers to terrorism by skilled professionals which can be due to radicalization. Example. हाँ ठीक है, सिंपल है, पर देखो आप बोलोगे सर मैंने ये वर्ड, इन्होंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा है, नो फैंसी वर्ड्स, नथिंग, टू द पॉइंट है. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. रीजंस फॉर कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ व्हाइट कॉलर टेररिज्म, ड्यू टू प्रोफाइलिंग लिमिट्स देयर डिटेक्शन बिकम्स चैलेंजिंग. गुड यूज ऑफ ये नहीं करना है कोमल, यू हैव टू राइट 1, 2, 3 ऐसे पॉइंट्स लिखने हैं. ओके, 3 मास सिग्नल, ओके, टेक्नोलॉजी. अब इसमें थोड़ा सा बता तो दीजिए, 3 मैप, इतना अच्छा पॉइंट आप लिख रहे हो, थोड़ा सा शो ऑफ यहाँ पे करना पड़ेगा. ठीक है, ट्राई करो कि अलग से पॉइंट भी बना लो, जैसे यहाँ पे सिग्नल ऐप डाल दिया, ठीक है, सिग्नल, टेलीग्राम, व्हाटएवर, एंड देन मेक सम अदर ऐप. यहाँ पे आपने यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड टू एंड एनक्रिप्शन, प्राइवेट सर्वर, तो इनमें से राइट एनी वन, और फिर एंड टू एंड सर्वर एनक्रिप्टेड ऐप को आप समटाइम्स यू कैन मेक a separate point or another sub point. ठीक है, their financial reach to formal credit salaries, well done. इन्होंने वीडियो देखी है, it's quite clear that she is sincere. इन्होंने पहले वीडियो देखा, समझा, that's why आपको भी दिख रहा होगा कंटेंट कितना ज्यादा एडवांस्ड है एंड टू द पॉइंट है, टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. टू द हाई सोशल कैपिटल, कल्चरल कैपिटल, कल्चरल की लिखने की जरूरत नहीं, सोशल कैपिटल इज गुड इनफ. देयर रीच बिकम्स अनट्रैकेबल. कॉन्सिक्वेंसेज, अगेन ये एरोस नहीं चाहिए. इंक्रीज इन इंस्टेंसेस ऑफ टेररिज्म विद द हेल्प ऑफ स्लीपर सेल, सुसाइड बॉम्बर्स, एंड कैन फर्दर एक्सेंटुएट लोन वुल्फ टेररिज्म. गुड, शी इज यूजिंग व्हाट वी टॉट इन सिक्योरिटी क्लास. लोन वुल्फ टेररिज्म हमने डिस्कस किया था, इन्होंने ऐड किया अपने आंसर. वेल डन. दे कैन फॉर्म नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट, प्रोफेशनल ड्यू टू देयर वाइडर रीच. नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट, प्रोफेशनल. हाँ ठीक है, प्रोफेशनल का बेसिकली एक्सेस हो जाएगा ना, अगर हाई फाई कोई डॉक्टर है, उस सेंस में आप कहना चाह रहे हो. ठीक है, बट थोड़ा सा लैंग्वेज मेक इट क्लियर. ऐसा लिखो कि मैं पढ़ूं और समझ आ जाए. आई डोंट हैव टू थिंक. क्लियर. नेक्सस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम टेररिज्म कैन इंक्रीज ड्यू टू देयर कैपेबिलिटीज इन IT सेक्टर्स, फाइनेंसेस. गुड. इंक्रीज इंस्टेंसेस ऑफ साइबर क्राइम. ठीक है, अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा आंसर है. Thus to cater this stringent measure by government required by NIA, I4C का फुल फॉर्म लिख दो, है ना, साइबर का पॉइंट, UAPA, FATF. ठीक है, अच्छे पॉइंट्स हैं, बट अगेन ये वाले पॉइंट्स हम टेररिज्म में भी लिखेंगे, ये कॉन्फ्यूजन. तो व्हाइट कॉलर टेररिज्म में आपने कुछ स्पेसिफिसिटी यू हैव टू ऐड. ठीक है, जैसे मैंने पहले के आंसर्स में भी थोड़ा बताया था, बट अगेन इट्स अ वंडरफुल आंसर, बहुत अच्छा आंसर है. लेट्स लुक एट D. आई डोंट नो द नेम, इनका टेलीग्राम पे अकाउंट नेम इज D. इनका एक बार देखते हैं क्विकली. Terrorism in India has evolved from penetration across border to sleeper cell and then to white collar terrorism. देखो ये भी एक अच्छा इंट्रोडक्शन है. Why? Because ये जो लाइन होती है जहां पे क्वेश्चन नहीं होता, दिस लाइन इज नॉट अ क्वेश्चन. क्वेश्चन तो यहां से एनालाइज द रीजन. सो इस लाइन को समटाइम्स यू कैन एक्सप्लेन इन द इंट्रोडक्शन, दैट आल्सो बिकम्स अ टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन. अदर वे इज टू डिफाइन द टर्म. दोनों ऑप्शन आपके पास होते हैं, कोई भी राइट एंड रॉन्ग नहीं है. ओके, सो हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम पेनिट्रेशन अक्रॉस border to sleeper cell then to white collar, which are individuals within nation using professional skills. ठीक है, fair enough. थोड़ा सा और इसको white collar को explain better तरीके से कर सकते थे, है ना. individuals within nation using professional skills, technical expertise, इस तरीके से, but no problem. reasons for complex detection, sophisticated or use of technology, dead drop, private server. देखो dead drop is not so obvious कि everyone would know ये क्या है. ठीक है, तो इवन इफ यू फील स्पेस कम है, 1 or 2 एग्जांपल्स कैन समटाइम्स बी डिटेल. उसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, एग्जांपल के थ्रू आप एक्सप्लेन कर दीजिए. ब्लेंडिंग इन, अच्छा. often uses financial crimes that mimic legitimate working, doctors involved in red coat blast, no background, अच्छा, no criminal background. okay,
थर्ड कंट्री इंट्रैक्शन, थर्ड कंट्री विच नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, ठीक है, थर्ड कंट्री इंट्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स डिटेक्शन, ठीक है, फेयर इनफ. इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिविल इंस्टीट्यूशंस, एग्जाम्पल सिविल इंस्टीट्यूशंस आप किस तरीके से, आप ये डॉक्टर और ये कहना चाह रहे हो क्या? थोड़ा सा एग्जाम्पल लिखिए. सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज, गुड. लेट डिटेक्शन कैन लीड टू ह्यूज लॉसेज, गुड. ये वेल डन. कन्विक्शन रेट इज पुअर ड्यू टू लेस अवेलेबिलिटी ऑफ एविडेंसेस, इवन आवर ब्लेंडिंग इन इज easy. Number of terrorists can be huge as they are mostly within nation, can erode trust within communities, act as intent driven and not money driven. Well done. ये बहुत अच्छा point है. So next we have Kawandeep Kaur. Kawandeep, I think she was in our last year's geography batch. इनका देखते हैं. I'm expecting a very good answer from her because she's not from this year, she's from last year, but let's see. So she's writing, right, white collar terrorism is not merely an offshoot of traditional extremism. Good. It is its evolution. Okay, ठीक है. This is the statement question. यहाँ से she's starting, traditional extremism uses direct violence or radical acts for ideological aims, whereas white collar terrorism employs power, finance, institutions causing indirect threats. ठीक है, this is not bad. ये basically इस statement पे focus कर रही हैं कि ये जो है ये evolution है, merely offshoot नहीं है, उसको address करने की कोशिश कर रही हैं. But इसमें white collar terrorism employs power, finance, institution causing indirect, widespread, systematic harms. इसके अलावा मतलब या डायरेक्टली ये जो प्रोफेशनल्स और ये सब पॉइंट है थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर सकते हो. इट्स नॉट अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी टू डू दैट. डोंट वरी अबाउट रेपिटेशन एटसेट्रा, ठीक है, बिकॉज डेफिनेशन के पॉइंट्स ही यूजुअली बॉडी में रिपीट भी होते हैं. अब लुक एट हर अप्रोच. शी इज राइटिंग रीजंस व्हिच मेक डिटेक्शन कॉम्प्लेक्स, कॉन्सिक्वेंसेस मोर सिवियर इन इंडिया. तो वो कैटेगरी कॉम्प्लेक्स डिटेक्शन एंड शी इज टॉकिंग अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस. तो इकोनॉमिक कैटेगरी में वो कह रहे हैं प्रोफेशनल्स नॉर्मल बैंक अकाउंट्स को यूज करते हैं. दे कैन फंड टेरर अटैक क्वाइटली, thousands of kg explosives, डॉक्टर मूव. वेरी गुड, बहुत अच्छा लिंकेज है, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं. इंस्टीट्यूशनल प्रोफेशनल एजुकेटेड हैं तो ट्रस्टेड अल्फा यूनिवर्सिटी, जॉब गिव एक्सेस टू वर्क प्लेस, इक्विपमेंट एटसेट्रा. तो मेडिकल प्रोफेशनल्स को आप एक्सप्लोसिव बनाना उनके लिए रिलेटिवली ईजी है. अगेन वंडरफुल लिंकिंग ऑफ पॉइंट्स. सोशल फैक्टर, दे ब्लेंड इनटू सिटीज एंड सोशल नेटवर्क्स bypassing profiling. हाँ, profiling is the keyword, ठीक है. breaks the public trust, ठीक है, रेड फोर्ट. then technology में encrypted apps etc. online planning leads to multiple attacks. बिल्कुल ठीक है. good networking, they have interstate international links. कश्मीर, हरियाणा, यूपी. ये देखो, ये होती है स्मार्टनेस. कश्मीर है, हरियाणा, फरीदाबाद, यूपी में भी समवर अरेस्टेड. तो दिस इज हाउ इन्होंने कह दिया कि इंटरस्टेट प्रॉब्लम भी है, ठीक है, और इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स भी हैं. दिस लीड्स टू वाइड स्प्रेड use of their ideology, a widespread network linked to जैश मोहम्मद. ठीक है, fair enough. That means इन्होंने वीडियो भी देखा, इन्होंने कंटेंट भी लिखा है, but look at her experience. I'm sure she has written lot of answers. अच्छा, one thing don't worry कि सर यही स्ट्रक्चर होना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. She could have written consequences separately as well, right? But with time you'll realize कि यार मेरे पास कितना टाइम है, कितना स्पेस है, how I can manage the two parts. Are they asked separately or can I write them टुगेदर? देखो, टॉप 100 रैंक में से कॉपी उठा के देखना, एवरीवन हैज स्लाइटली डिफरेंट अप्रोच, ठीक है. सो किसी की अप्रोच कॉपी मत करिए, ट्राई टू फाइंड योर ओन आंसर. द कंटेंट इज एक्सीलेंट इन दिस वन. देन चैलेंजेस. अब चैलेंजेस ये एक्स्ट्रा दिख रही हैं कि प्रोफाइलिंग लिमिट, सेल्फ फंडिंग, प्रोफेशनल्स, डी रेडिकलाइजेशन. गुड. अ लॉट ऑफ दीज पॉइंट्स यू माइट फील कि रिपीट हो रहे हैं, बट दिस इज द स्किल टॉपर्स हैव. वो पॉइंट रिपीट भी करते हैं और ऐसा लगता भी नहीं है पॉइंट रिपीट हुआ है. सो दे विल चेंज द वर्ड्स, दे विल यूज सम सिनोनिम्स, ठीक है, या टर्म्स को पहले छोटा लिखेंगे, बाद में एलैबोरेट कर लेंगे, या ऑपोजिट. वे फॉरवर्ड यूज ऑफ AI, स्ट्रिक्ट हायरिंग प्रोटोकॉल्स इन इंडस्ट्री. गुड. ऑनलाइन डेटा, स्ट्रिक्ट आइज ऑन सेंसिटिव आइटम्स, परचेज, लीगल इंस्टीट्यूशन फाइनेंसेस मॉनिटर क्लोजली, ठीक है. Guided by Vasudev Kutumbakam, zero tolerance for terrorism, India strives for peace, unity, security. हाँ, but again देखो, it's a wonderful answer. But ये conclusion, always try to make the question from the answer. जो आंसर राइटिंग का बेस्ट एस्पेक्ट होता है, पहले आंसर पढ़िए और ये देखिए कि ये इसी क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिक है कंटेंट, और कैन दिस कंक्लूजन बी फिट इनटू सम अदर. जैसे ये वाला जो कंक्लूजन है, ये आप नॉर्मल टेररिज्म के लिए भी लिख सकते हो, टेररिज्म यूजिंग टेक्नोलॉजी भी लिख सकते हो, इंटरनेशनल एस्पेक्ट ऑफ टेररिज्म पे भी आप ये कंक्लूजन लिख सकते हो. तो यहां पे बिकॉज वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट व्हाइट कॉलर टेररिज्म,
So you have to add some aspects of white collar terrorism in this answer. ठीक है, चाहे वो प्रोफेशनल लेके हो या फिर आप यहीं से एक पॉइंट उठा लीजिए, ये जो वे फॉरवर्ड लिखा है इसी में डी रेडिकलाइजेशन को थोड़ा एलैबोरेट कर सकते हैं, या फिर यू कैन टॉक अबाउट कि फ्यूचर में ये जो व्हाइट कॉलर जॉब्स में अगर टेररिस्ट लोग जाएंगे सो हाउ डिफिकल्ट इट विल बी फॉर द सिक्योरिटी एजेंसीज टू मैनेज। तो उसमें स्किल ट्रेनिंग करना है, यूज ऑफ बिग डेटा, IoT। आई नो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है बट समटाइम्स टॉपर्स सेव वन ऑफ दीज लाइन्स। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये नॉन व्हाइट कॉलर टेररिज्म टाइप ऑफ कंक्लूजन लग रहा है। ठीक है, तो उसमें व्हाइट कॉलर के एस्पेक्ट्स हमेशा दिखने चाहिए जो कि थीम ऑफ द क्वेश्चन है, बट ओवरऑल वंडरफुल आंसर, वेरी गुड आंसर। लेट्स लुक एट किसका आंसर है। दिस इज एम है हमारे मनी। ओके, मनी का आंसर देखते हैं। अगेन ट्राई टू सेंड इन PDF गाइस। ठीक है, इमेजेस बिकम स्लाइटली ट्रिकी टू चेक। तो मनी सिंह रिसेंटली नवंबर 10 ब्लास्ट नियर रेड फोर्ट पॉइंट टुवर्ड्स इमर्जिंग थ्रेट ऑफ व्हाइट कॉलर टेररिज्म। हाँ, ये नवंबर 10 लिखने की जरूरत नहीं है, रिसेंट दिल्ली फोर्ट ब्लास्ट एटसेट्रा, इतना स्पेसिफिक डेट इज नॉट रिक्वायर्ड। Reasons for complex nature, different approach. Again, underline करिए words को. Make their job easy, guys. आप उनकी जॉब को difficult मत करिए, please. Okay? Different approach than conventional method, traditionally uneducated. अब आप traditional बता रहे हो, but now people with specialized skills. इसमें reasons में traditional की जरूरत नहीं है, because again read the question. सिर्फ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन द क्वेश्चन टॉक अबाउट द एवोल्यूशन एटसेट्रा, है ना। तो बार बार उसका कंपैरिजन हमें कंटेंट में करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली इंट्रोडक्शन में या इंट्रोडक्शन के बाद 2 लाइन में आप उसको ब्रीफली कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, प्रोफाइलिंग लिमिट स्क्रीन स्किन टेररिस्ट आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई इंटीग्रेट नेटवर्क सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। एग्जांपल, क्या नेटवर्क, क्या टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, वेल एजुकेटेड पीपल हैव एक्सेस टू पीपल हु आर फ्रॉम डिफरेंट स्पेशलाइज्ड बैकग्राउंड्स। राइट, अब देखो ये जो लाइन है इसको छोटा करके लिखो। वेल एजुकेटेड पीपल हैव एक्सेस इनटू डिफरेंट स्पेशलाइज्ड बैकग्राउंड, प्रोफेशनल्स, लिंकेजेस, ऐसे। डिफिकल्टी इन फाइनेंस ट्रेसिंग, गुड। हियर दीज आर पीपल विद फाइनेंशियल सिक्योरिटी यूटिलाइजिंग लीगल चैलेंज, वेल डन। बट अगेन अंडरलाइन गाइस, वो मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत आपको करना है। डी रेडिकलाइजेशन इज डिफिकल्ट, ट्रेडिशनल अटैक्स हैव इवॉल्व्ड into hybrid warfare ranging from cyber crimes to, ठीक है, well done, good use of security content, hybrid warfare, cyber crimes, lone wolf attacks, ये सब हमने पढ़ा है, excellent. Consequences, exploitation of trust in institutions, तो ये बार बार erosion of trust 2 बार नहीं लिखना है, you have to save your time. Laws might be insufficient, institutional machinery, finances utilization, brainwashing और digital security threats. हाँ ठीक है, consequences में, but again consequences में the threat to life and property, critical infrastructure, वो सबसे पहला consequence होता है। ठीक है, और फिर consequence में आप ये कर सकते हो कि organized crime से इनके linkages can be established later on, इस तरीके से you can add some answer। ठीक है, some ways to minimize this threat include revamping the technology. Example, देखो ये तो कोई भी बोल देगा ना कि टेक्नोलॉजी रिवैम्प करो, ये करो, वो करो, एनीवन कैन से दैट, बट एक IAS ऑफिसर स्पेसिफिक डिटेल्स देके कहता है दैट टेक्नोलॉजी में मे बी वी कैन ट्राई टू इंटीग्रेट इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, इस तरीके से we can introduce some intelligence reforms, both human and technological. Okay, de-radicalization model has to evolve. Again, in student के पास this person has content, this aspirant has content, good content. The answer is also good, but it can also improve. ठीक है, but overall, again, impressed with the answer. Good. Let's look at some other answer. शशि का देखते हैं जी, शशि कुमार। ओके, so Shashi is saying white collar terrorism or professional facilitation of terrorism, good, smart, signifies an advancement of from low skilled foot soldier to educated professional. हाँ देखो, look at his introduction, ये evolution को दिखा रहे हैं in single line, and this is the skill of topper. That's why answer writing is difficult, कि आप 2 लाइन में जो लिखना चाहिए वो 6 लाइन्स में लिख रहे हो, बिकॉज कॉलेज स्कूल में ऑपोजिट होता था, 1 लाइन होता था, उसको 6 पॉइंट्स में लिखना होता था,
Clear? Now you have to reverse. Good, well done. Doctors, engineers, IT experts, well done. The shift is driven by ideological radicalization, digital conflict. हाँ, ये पूछा नहीं है causes. So what you do is you write down only the terms. ठीक है, और मे बी उसको एक्सप्लेन करने के लिए 1 line you can write, not enough, because this is the first part of the question. Complex detection, especially in okay. तो 10 marker में we cannot give this much space before we start the first part of the answer. Okay. Institutional camouflage, very good use of the terms. English अच्छी है, camouflage, right? ये security type के terms आप use कर सकते हैं. Use of professional legitimacy, high trust institutions, medical facilities as basis for operation, good. Financial blind spots, illegal money, loans, etc. well done. Red flags with हवाला वो prevent हो जाते हैं. Technological shielding, encrypted platforms, 3 all of that, good. But again 3 नहीं, मुझे 5 points चाहिए. Psychologically 5 points each in 2 parts, 10 marker है, तब जाके you get your 6.5, right? So देखो, don't think I'm writing a very good answer. Nobody cares. The person giving the marks wants to look at number of points, wants to look at the keywords, especially in conclusion, wants to have a very good flow of the answer. तो उन सब पे आपको ध्यान देना है, ठीक है? Consequences are severe. So enhanced lethality, good. Hybrid warfare, weapons, well done. Erosion of public trust, well done. Network resilience, self-sustaining. Again, यहाँ पे see if you can write down 1 or 2 more points, right? Social consequence, economic consequence, security consequence. और समझ ना आए तो यार इंडिया में जम्मू कश्मीर, नक्सल, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, इनसे रिलेटेड 1-2 कॉन्सिक्वेंस लिख दो, ठीक है? इनके साथ भी तो लिंकेजेस हो सकते हैं व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स के. सो देयर इज ऑलवेज इनफ कंटेंट. India can counter white collar terrorism by upgrading security doctrine, good. Financial intelligence, technical intelligence by using AI, ML, good. Background checks on institutional audit trails, de-radicalization models, good. De-radicalization model बहुत अच्छा word है जो आप use कर रहे हो. That shows you have seen the video and you're doing very well. This is a very good answer. ठीक है, this is a very very good answer. ये student is ready to attempt the mains. ठीक है, बट ऑफ कोर्स मेंस में थोड़ा अलग होता है. यू नीड टू कीप ऑन स्विचिंग फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट. 4 क्वेश्चन सिक्योरिटी के हैं GS3 में, देन एनवायरमेंट भी है, डिजास्टर भी है, इकोनॉमी भी है, साइंस भी है, ठीक है? सो वहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट स्किल है. सो लिटिल बिट मोर प्रैक्टिस ऑफ फुल एंड टेस्ट एंड दे आर रेडी टू गो. Let's look at if we have some other answer on this. Is that it? I think that's it for the white collar terrorism. ठीक है. So if you have any other question, query, कोई भी ऐसा doubt होता है तो feel free to drop in the comment section. But all the answers were surprisingly very good, and it's also because the ones who are practicing answer writing are the ones who have sent the answers, right? A lot of students feel कि अभी I'm not ready, डरे हुए रहते हैं. Guys, just accept that I will be really bad with my first answer, first 10, first 20, first 30, 40 answers. ठीक है, ये एक process है in which you have to be bad initially and then only you can improve. ठीक है, तो कोई भी query होता है drop in the comment. Well done. Okay, good evening everyone. Today we'll check some of the answers of Utkarsh. एक student है, उसमें ongoing class है. Normally I only check answers in the classes which are going on. ठीक है, after classes I always tell my student test series join करिए, लिखिए, start improving from 2 out of 10, 3 out of 10, 5, 6 out of 10 पे आइए, and then maybe when you write mains we can talk about some fine tuning and getting those extra half mark, 1 mark. ठीक है, तो इनके कुछ answers देखते हैं. He usually writes very good answers. और ये सब PYQ हैं जो हम क्लास में हमने दिए थे, तो उन्हीं पे इन्होंने बच्चों ने आंसर लिखे हुए हैं. लेट्स ट्राई एंड सी हाउ ही इज ट्राइंग टू. सो क्वेश्चन है, मनी लॉन्ड्रिंग पोजेस अ सीरियस थ्रेट टू कंट्रीज इकोनॉमिक सॉवरेनिटी. ओके, क्वेश्चन ये नहीं है बाय द वे, क्वेश्चन अब आएगा. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया कि मनी लॉन्ड्रिंग इज अ सीरियस थ्रेट फॉर कंट्रीज इकोनॉमिक सॉवरेनिटी. व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया एंड व्हाट स्टेप्स आर रिक्वायर्ड. तो स्टेप्स नीडेड पूछा है टू बी
taken to control this menace. So money laundering converts illegal proceeds into legitimate assets. Well done. बहुत simple, concise introduction. Good. Concealed transactions के through. Deepening nexus with crime and terror. तो ये नेक्सस को अंडरलाइन करिए, ठीक है. उनको थोड़ा शो ऑफ भी करना है आंसर में. लुक एट टॉपर्स आंसर्स. प्रेजेंटेशन पे दे आर वर्किंग वेरी हार्ड. सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया वीकन्स इकोनॉमिक सॉवरेनिटी, ठीक है. हवाला चैनल्स, बाईपास आरबीआई कंट्रोल्स. हवाले को अंडरलाइन करो. फंड्स टेररिज्म एंड क्राइम. ईडीएनए प्रूफ दिखाते हैं कि फंड्स एडिंग एलईटी एटसेट्रा. एक्सपैंड शैडो इकोनॉमी. गुड. डिस्टॉर्ट्स मार्केट. इरोड्स गवर्नेंस. इंटरनेशनल रिस्क्स. बहुत बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं ये. ही इज ट्राइंग टू ब्लेंड सिक्योरिटी विद कंट्रीज इकोनॉमिक सॉवरेनिटी. ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था बिकॉज इसमें GS3 का इकोनॉमी इज ऑल्सो नीडेड टू आंसर द क्वेश्चन. बट इन्होंने बहुत अच्छे से मनूवर किया है क्वेश्चन के आंसर को. स्टेप्स रिक्वायर्ड. स्ट्रेंथन PMLA, एनहांस, ठीक है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, MLATs, FATF, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कैपेसिटी, नीडी, DRI, ठीक है. DRI इस बार प्रीलिम्स में भी आया है, ठीक है. FIU, KY स्टैंडर्ड्स, PAN, GST, दिन लिंकेज, ठीक है. बहुत अच्छे पॉइंट्स है, बहुत ही अच्छा कंटेंट है इनका, ठीक है. सो आई एम रियली इंप्रेस्ड विद दैट. रोबस्ट AML. अब AML एनफोर्समेंट इज एसेंशियल. AML अगर यहाँ पे लिख रहे हो तो यहाँ पे AML को अवॉइड करो, ठीक है. देखो स्मार्टनेस दिखाओ ना यार. AML मत लिखो. ये लिख दो कि stringent measures to prevent the nexus of money laundering and हवाला. कुछ इस तरीके से लिख दो so that AML the word you can use in conclusion. Okay, good answer. अच्छा आंसर है. One more thing, the student is all right now attending the classes. इनकी फाउंडेशन अभी चल रही है. So उसके हिसाब से it's an excellent answer. Considering in 6 months time he'll improve drastically. India's proximity to two world's biggest illicit opium growing states has enhanced our internal security concerns. Okay, but ये क्वेश्चन नहीं है. क्वेश्चन क्या है? Explain the linkages between drug trafficking and other illicit activities such as gun running, money laundering, human trafficking, and what countermeasures should be taken. तो दो पार्ट है. पहले linkages बताया ना, and second counter measures that need to be taken. ठीक है. So according to UNODC, over 80% global illicit opium originates from India's neighborhood, intensifying internal security threat. Good. That drug flows create interlinked criminal chains, enabling weapons, money, human crimes, linkage between drug trafficking and other. देखो, look at this. ये first part of the question है as it is. They are using the language. इसमें कोई creativity नहीं रखनी है, ठीक है. Because creativity या synonyms can confuse the examiner. उनको confusion हो सकता है कि यार ये पूछा है first part, what is the first part, right? We don't want that. Drug trafficking, gun running, shared cross-border routes, Punjab, good. Manipur, Myanmar, well done, excellent. ठीक है. ड्रग ट्रैफिकिंग, गन रनिंग मतलब आर्म्स ट्रैफिकिंग, ये सब. ड्रोन्स डिप्लॉइंग हेरोइन वेपन्स अलोंग इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर. ओके. ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला चैनल, शेल फार्म्स, हेरोइन प्रॉफिट्स राउटेड थ्रू दुबई. Drug trafficking, human trafficking, common smugglers, trafficked women into peddling, etc. Forged documents. Well done. बहुत अच्छे content is excellent. Drug trafficking, terror financing, terror groups fund operations through heroin trade. तो ISI backed models financing arms via cross border narcotics. ठीक है. lot of the examples जो हमने क्लास में डिस्कस किए हैं, lot of examples जो उन्होंने खुद से मेहनत करके और निकाले हैं, and that's the skill of a potential ranker. ठीक है. वो खुद से मेहनत हमेशा करते हैं. Counter measures to prevent these. तो स्ट्रेंथन बॉर्डर टेक्नोलॉजी, एंटी ड्रोन सिस्टम्स अलोंग स्पेशल. और ये देखो स्पेसिफिक भी कर रहे हैं. पंजाब JNK में स्पेसिफिकली ध्यान दीजिए. ऐसे आंसर करते हैं एक IAS एस्पिरेंट. इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस एंड कॉर्ड स्ट्रेंथनिंग जॉइंट ऑफ बिटवीन NCB IB. ठीक है. गुड. अगेन हमारी क्लास का कंटेंट बहुत अच्छे से ये यूज कर रहे हैं. फाइनेंशियल क्रैकडाउन, अग्रेसिव PMLA, FIU, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, UNODC, इंटरपोल. गुड. रेगुलेट प्रीकर्सर्स, एंड टू एंड ट्रैकिंग ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड, फार्मा ऑपियोइड्स. तो अगेन ये बहुत ड्रग ट्रैफिकिंग में जो इंक्लूड केमिकल्स एक्सेट्रा, ही इज ट्राइंग टू टॉक अबाउट दैट. कम्युनिटी रेजिलियंस, फास्ट ट्रैक रेजोल्यूशन. ठीक है. कोऑर्डिनेट. अब ये यहाँ पे इसको अवॉइड करो. ये आप बार बार डाल रहे हो. यहाँ पे भी यू आर ट्राइंग टू पुट नॉट नीडेड. ठीक है. A coordinated security, financial and social strategy is essential to break India's drug crime nexus. ठीक है. Fair enough. Indian government has recently strengthened the anti-terrorism laws by amending the UAPA and NIA Act. ये 2019 में अमेंडमेंट हुआ था, तो उसी पे क्वेश्चन आ गया था. एनालाइज द. अगेन देखो ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से है. ये डिस्कस, एनालाइज के बाद से. एनालाइज द चेंजेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रिवेलिंग security environment while discussing the scope and reasons for opposing the UAPA by human rights organization. ठीक है. तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्या क्यों इनका अपोज किया जा रहा था, what was the reason. तो UAPA defines criminalizes activities threatening India's sovereignty, unity, security. Recent amendments
क्या क्या है? हाँ, अगेन अगर ये 10 मार्कर है तो इसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली कम टू की अमेंडमेंट्स। इंडिविजुअल डेजिग्नेशन एज टेररिस्ट, ठीक है, गुड। एक्सपेंडेड डेफिनेशन ऑफ टेरर फंडिंग, एक्सेलेंट। एनहांस इन्वेस्टिगेटिव पावर्स, ये बहुत अच्छे आंसर्स हैं गाइस, ठीक है। वाइडर पावर टू अटैच प्रॉपर्टी, गुड, ग्रेट। की अमेंडमेंट्स इन एनआईए, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, कैन अटैक्स ऑन इंडियन एम्बेसी अब्रॉड, ओके। देखो ये यहाँ पे लिख सकते थे इंडियंस एम्बेसी अब्रॉड, बट व्हाट ही इज डूइंग इज वेरी स्मार्ट। ही इज सेइंग मैं, ये मेरा मेन हेडिंग है, ये मेरी फर्स्ट सब हेडिंग है, ये मेरी एक्सप्लेनेशन है और ये मेरा एग्जाम्पल है, राइट। सो ही इज शोइंग हिज कंटेंट इन अ बेटर मैनर। सेम कंटेंट 4 आउट ऑफ 10 और 6 आउट ऑफ 10, सेम कंटेंट को दोनों मार्क्स मिल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ यू प्रेजेंट द कंटेंट, हाउ यू स्ट्रक्चर द कंटेंट, हाउ यू स्पेस द कंटेंट, ओके। अगर इन वर्ड्स में कोई भी डाउट है, प्लीज ड्रॉप अ कमेंट टू आस्क एनी क्वेश्चन। एक्सपेंशन टू मोर offenses covers human trafficking, cyber terror, special NIA codes, relevance in current scenario, current security environment, cross border। अब ये अगेन ये इसमें बिकॉज यही तो फर्स्ट पार्ट था, रेलेवेंस, तो अमेंडमेंट को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा आपको। एक टेबल फॉर्म में फॉर एग्जांपल आप बना सकते हो, एग्जांपल्स एंड ऑल। अलग से रेलेवेंस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज नहीं लिख पाओगे आप, आपने यहाँ वर्ड लिमिट क्रॉस की होगी। क्रॉस बॉर्डर टेरर थ्रेट्स, इमर्जिंग लोन वुल्फ एंड ऑनलाइन tech-enabled terror networks, concerns of human rights groups, vague broad definitions, individual terrorists tagging without trial, low conviction rates, ठीक है। बट ये पूरा एक सेकंड पार्ट था। अब इसमें आपने 3 पॉइंट लिखे हैं, क्लियर। और ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आपने 1 पेज 2 पेज अप्रॉक्सीमेटली 2 पेजेस लिख दिए। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। क्वेश्चन पढ़ोगे तो चेंजेस क्या क्या इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रिवेलिंग, तो चेंजेस इन द प्रिवेलिंग पूछा हुआ है। रेलेवेंस इज समथिंग विच यू डोंट नीड टू राइट अलग से, ओके। और एनीवे आपके चेंजेस में ही काफी रेलेवेंस एग्जांपल्स हैं। एंड देन स्कोप एंड रीजंस फॉर अपोजिंग, इसमें 3 नहीं 4, 5, 6 पॉइंट्स आपको डालना पड़ेगा, ओके। वे फॉरवर्ड स्ट्रेंथन जुडिशियल रिव्यू मैकेनिज्म, अंडरलाइन करिए बिल्ड सेफगार्ड्स फॉर डिसेंट एंड सिविल लिबर्टीज, एविडेंस स्टैंडर्ड्स, इन्वेस्टिगेशन क्वालिटी, स्ट्रॉन्ग लॉज मस्ट बी बैलेंस। अगेन ये अवॉइड करिए, बट अगेन इनका कंटेंट बहुत अच्छा है। क्लास में भी आई चेक्ड सम ऑफ हिज आंसर्स, ही हैज अ टेंडेंसी टू राइट अ लॉट। तो राइट नाउ ही इज फोकसिंग ऑन, मतलब ही इज सेइंग सर मैं स्पेस और वर्ड्स को मैं बाद में कंडेंस कर लूंगा, राइट नाउ आई वांट टू बी स्लाइटली लिबरल विद इट, ठीक है। बट अगेन रिस्क की स्ट्रैटेजी हो सकती है, स्टार्टिंग से ही आप सही फॉर्मेट में ट्राई टू अप्रोच द क्वेश्चन। नेक्स्ट है स्कर्ज ऑफ टेररिज्म इज अ ग्रेव चैलेंज टू नेशनल सिक्योरिटी। ओके, क्वेश्चन क्या है? व्हाट सॉल्यूशंस डू यू सजेस्ट टू कर्ब दिस ग्रोइंग मेनेस एंड व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ टेररिस्ट फंडिंग, ठीक है। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स हाइलाइट्स राइजिंग टेरर सोफिस्टिकेशन, ओके। देयरफॉर टेररिज्म डिमांड्स कोऑर्डिनेटेड मल्टी लेवल। हाँ, ये जो लैंग्वेज होती है ना, ये कंक्लूजन की लैंग्वेज होती है, ओके। तो इसको अवॉइड करो, सीधा जो यहाँ पूछा हुआ है व्हाट सॉल्यूशन डू यू सजेस्ट। और अगेन डिपेंड करता है, 10 मार्कर में तो ये नॉट नीडेड, 15 में यू कैन राइट दिस, बट यहाँ पे भी फिर भी ये देयरफॉर टाइप ऑफ वर्ड्स आप यहाँ यूज नहीं करते हो, ठीक है, बिफोर द बॉडी, यू डोंट यूज दीज वर्ड्स देयर, ठीक है। अगर सॉल्यूशंस है तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो इन 2-3 लाइंस, ठीक है, बिकॉज सॉल्यूशन पूछा है। स्ट्रेंथन इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन, ठीक है, मल्टी एजेंसी सेंटर, स्मैक, नैटक्रेट, पोस्ट 11, मॉडर्नाइज पॉलिसिंग, ठीक है, सिटी फोर्सेज, एनएसजी, गुड फाइट, टाइटन लीगल फाइनेंशियल मेजर्स। काफी हमारे क्लास का कंटेंट इन्होंने अच्छे से प्रेजेंट किया है। काउंटर रेडिकलाइजेशन, महाराष्ट्र काउंसलिंग प्रोग्राम, हाँ ठीक है, हमने महाराष्ट्र का पढ़ा था, आई थिंक केरला का पढ़ा था, है ना, 2 एग्जाम्पल किए थे। इज यूजिंग महाराष्ट्र गुड सिक्योर बॉर्डर कोस्टल एरियाज, smart fencing, UAV patrols, post 2611, good development, community engagement, grievances, jobs, JNK panchayat, well done, बहुत अच्छा। international cooperation, FATF, joint efforts, major sources क्या है? हवाला network, drug trafficking, FICN, state sponsorship, extortion, kidnapping, crypto, online fund, smuggling, illegal trade, बहुत अच्छा content, NGO, charity misuse, again all of the content and something extra beyond the class as well, बहुत अच्छा आंसर है। अगेन ऐसे मत करिए। holistic countermeasures combining security development and financial disruption, this one is a very good answer, ठीक है। discuss the types of organized crimes, discuss linkages between terrorist and organized crime, ठीक है। तो टाइप्स पूछा है एंड थीम क्या है? ऑर्गेनाइज क्राइम। तो ऑर्गेनाइज क्राइम को हम डिफाइन कर सकते हैं, थीम इज यूजुअली डिफाइंड इन द इंट्रोडक्शन, क्लियर। linkage between terrorist and organized crime that exists at national and transnational level. Organized crime involves structured, profit-driven, illegal networks undermining national security, understaffing,
ठीक है, हायरार्की एंड ऑल वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हो जो हमने क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड यूज कर लिया, बट हायरार्किकल स्ट्रक्चर इज समथिंग यू कैन यूज. अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स क्लैरिफाइज हाउ दे इंक्रीजिंगली कवर कन्वर्ज विद टेररिज्म टाइप्स, ड्रग ट्रैफिकिंग. ठीक है, तो क्लास का कंटेंट है, आई विल क्विकली गो थ्रू इट. आर्म स्मगलिंग, बट ये देखो ये बहुत अच्छा है क्लास में, ठीक है, हमने सब किया एग्जाम्पल पॉइंट्स वगैरह, बट इट्स नॉट सो सिंपल, दिखाना पड़ता है तब जाके मार्क्स आते हैं. मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटरफिट करेंसी, साइबर क्राइम, ठीक है, फिशिंग एंड रैंसमवेयर, लिंकेज बिटवीन टेररिज्म एंड, तो ये भी दोनों पार्ट क्लास नोट से ही हैं. सो फेयर इनफ, फाइनेंशियल नेक्सस, ऑपरेशनल नेक्सस, स्ट्रक्चरल नेक्सस, क्रिमिनल आइडियोलॉजिकल फ्यूजन, ट्रांसनेशनल सपोर्ट, एग्जाम्पल नेशनल एंड ट्रांसनेशनल में दे रहे हैं, डी कंपनी, माओइस्ट, इलीगल, वेरी गुड. बट अगेन ये ऐसा नहीं होना चाहिए, कंक्लूजन ये पॉइंट फॉर्मेट में नहीं होता है. यू नीड टू रैप अप योर आंसर इन अ गुड मैनर, ठीक है. तो उसमें आप अगेन थिंक ऑफ ब्रॉड पॉइंट्स कि एक होलिस्टिक अप्रोच करनी है, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, एनी ऑफ दीज बिग वर्ड्स यू कैन यूज. एक ये क्वेश्चन था, वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन, टेररिज्म इज इमर्जिंग एज कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री. ये वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन था लास्ट 13 इयर्स का सिक्योरिटी में. ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड्स एनालाइज द अबव स्टेटमेंट. अब ये स्टेटमेंट को एनालाइज करना है. सो दिस इज क्वेश्चन कि कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री कैसे इमर्ज हो रही है. तो ग्लोबल टेरर इंसिडेंट्स इंक्रीज शार्पली, शोइंग टेररिज्म एवोल्यूशन इनटू कॉम्पिटिटिव वायलेंट इंडस्ट्री. दिस कॉम्पिटिटिव रीशेप्स टैक्टिक्स, फाइनेंसिंग, रिक्रूटमेंट. बिल्कुल सही लाइन पे जा रहे हैं, यही सब लिखना है कि टैक्टिक्स में कैसे कंपटीशन है, फाइनेंस में कैसे कंपटीशन है, रिक्रूटमेंट में, ऑपरेशंस में, ऑल ऑफ दैट. सो कंपटीशन फॉर फंडिंग, बिल्कुल. अब देखो ये जैसे स्टार्टअप होते हैं ना कि उनको भी फंडिंग के लिए शार्क टैंक जा रहे हैं, दे कॉम्पीटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट. तो टेररिस्ट में भी ऐसा हो गया कि जितना ज्यादा टेरर इंसिडेंट करेंगे, जितना ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करेंगे, उतना ज्यादा फंडिंग मिलेगा, राइट. सो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा. ISIS tagged oil routes, Lashkar-e-Taiba diversified donations, branding and propaganda rivalry. जैसे ISIS outcompeted Al-Qaeda, well done. Technological innovation, use of drones, etc. ISIS drone use कर रहा है अच्छा खासा. Franchisee and outsourcing model, हाँ ISIS का भी जैसे franchisee आ गया है, सीरिया लेवांत का है, all of that. अभी तो Islamic State we call it broadly, ठीक है. यहाँ हिजबुल मुजाहिदीन का आप लिख सकते हो, all of these. तो इनके different हमारे ब्रांचेस होते हैं, ठीक है. तो जेन ग्रुप्स वाइंग फॉर टेक savvy ऑपरेटिव्स, रिक्रूटमेंट के लिए कंपटीशन, क्रिमिनल टेरर, ये ऑलरेडी आई थिंक मैंने चेक किया हुआ इनका आंसर, बट एनीवे. वे फॉरवर्ड, स्ट्रेंथन काउंटर फाइनेंसिंग आर्किटेक्चर. देखो ये अगेन ये आई थिंक मेरा ही कमेंट है, आई कैन फाइंड आइडेंटिफाई माई हैंड राइटिंग कि इसमें एग्जाम्पल भी थोड़ा दे दीजिए तो और एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा. आई एम टॉकिंग अबाउट द बेस्ट ऑफ द मार्क्स, उस लेवल पे इनकी चेकिंग कर रहे हैं. डिसरप्ट टेरर सप्लाई चेन्स यूजिंग टेक्नोलॉजी, AIML का यूज करिए, इंटेलिजेंस, ओनली कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल स्ट्रैटेजीज कैन. हाँ ठीक है, इंटरनेशनल एस्पेक्ट पे आप कर रहे हो कि ग्लोबल कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजी. दीज आर वेरी गुड आंसर्स, वेल डन. आई अर्ज ऑल द स्टूडेंट्स कि प्लीज स्टार्ट राइटिंग द आंसर. जब तक आंसर लिखोगे नहीं, इंप्रूव नहीं करोगे. और फॉरगेट दिस कि एक दिन आएगा व्हेन आई विल नो थिंग्स, आई विल हैव कंटेंट, ऐसा कुछ नहीं होता. फाउंडेशन हो गया, टॉपिक हो गया, स्टार्ट राइटिंग. बी बैड एट इट, बिकॉज राइटिंग एंड नोइंग द कंटेंट आर टू डिफरेंट प्रोसेस. यहाँ नॉलेज होगा लेकिन वो पेपर पे नहीं आता है. इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 5, 6, 7 months ऑफ प्रैक्टिस. तो दैट्स व्हाई प्लीज स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स, ठीक है. वेल डन, गुड जॉब.